Hey guys, welcome back to another learning video. I am Shugupta and I am saying you hi. Hope you are doing your studies well. So friends, as you know, in previous video we cover our this chapter till pollination process. Now we come to our next topic, which is fertilization process. So friends, as you know, in the sexual reproduction plants there are some process like pollination, fertilization, formation of seed, formation of fruit and germination of seed. So हमने कवर कर लिया था pollination process. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना fertilization process. So I am drawing the structure of the flowering plant. That you know the parts of a plant in the as you see the previous video. So now in this video we start our new topic, which is fertilization process. So friends, as you know, in the previous video we learned about the pollination process, that when the pollen grains on the anther comes to the stigma, this process known as pollination process. And now we start our new topic, which is fertilization process. So this is the ovary, this is the style, and this is the stigma. So inside the ovary there is a ovule, and inside the ovule there are some egg cell. As you see in the previous video, I have discussed about the structure of the flower. So in fertilization process, जब हमारा pollination process की मदद से यहाँ पे हमारे pollen grains आ गए थे. So pollen grains, the male sex cells contains 2 male gametes. हमारे pollen grains contains क्या करते हैं? 2 male gametes. So when the male gametes from the pollen grains fuse with the egg cell to form a zygote. So fertilization process में यही होता है, जब हमारे ये 2 male gametes मीन्स जो हमारे pollen grains हैं वो जब हमारे फ्यूज़ होते हैं, जब हमारे फ्यूज़ होते हैं egg cell से, तो वो क्या डेवलप कर जाते हैं? जायगॉट. एक्सेल को जायगॉट में डेवलप करा देते हैं. दिस प्रोसेस नोन एज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. सो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में यही है कि जब हमारे मेल गैमीट्स मीन्स जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं वो जब फ्यूज़ कर जाते हैं हमारे एक्सेल से इन द ओव्यूल, दे फॉर्म अ जायगॉट. This process known as fertilization process. Now we come to our next process, which is formation of seed. हमारा pollination process हो गई, fertilization process हो गया, अब हमारा होगा formation of seed. अब हमारा seed बनेगा. seed बनने के बाद क्या होगा? हमारा fruit बनेगा. So seed की formation में क्या होता है? जो हमारा ये मेल पार्ट है मीन्स जो एंथर एंड जो फिलेमेंट है वो फॉल कर जाता है एंड जो हमारा ये जो पेटल्स होती हैं, जो लीव्स होती हैं फ्लावर्स की, वो भी फॉल ऑफ कर जाती हैं एंड हमारा जो स्टिग्मा और स्टाइल होता है वो भी फॉल ऑफ कर जाता है एंड इन द एट लास्ट ओनली द ओवरी रिमेन्स. मीन्स हमारा फॉर्मेशन ऑफ सीड, हमारा सीड की फॉर्मेशन में जो हमारे जितने भी पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, मीन्स द मेल पार्ट, मीन्स द स्टेमन, मीन्स द एंथर एंड द फिलेमेंट, द पेटल्स ऑफ द लीफ, द स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ द लीफ आर विल्टेड एंड फॉल ऑफ. ओनली द ovary remains. Inside the ovary there is a ovule and inside the ovule there is a zygote which developed into further in the formation of seed process. So अभी हमने formation of seed process में पढ़ा है कि
अभी तक हमने पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ सीड प्रोसेस में कि हमारे जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हमारे बच जाते हैं एक्सेप्ट अवर ओवरी, हमारे जैसे फॉर एग्जांपल पेटल्स हो गए, स्टेमेन हो गई, स्टाइल, स्टिग्मा, वो सारे विल्टेड हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं एंड फॉल ऑफ कर जाते हैं, मीन्स गिर जाते हैं। और हमारा क्या बचता है? सिर्फ हमारा ओवरी बचता है। ओवरी के अंदर क्या होता है? हमारा अव्यूल। अव्यूल के अंदर क्या होता है? हमारा जायगोट। जायगोट किससे डेवलप्ड हुआ है? एग सेल से। सो अब हमारा जायगोट आगे डेवलप्ड होगा एम्ब्रियो में इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड प्रोसेस। सीड अब हमारा जब वो सारा का सारा जो जितने भी पार्ट्स हमारे रह जाते हैं एक्सेप्टेड द ओवरी, सारे फॉल ऑफ कर जाते हैं एंड जो हमारा ओव्यूल के अंदर जो जायगोट होता है वो किस में डेवलप हो जाता है? हमारा डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। वो हमारा एम्ब्रियो में डेवलप्ड हो जाता है एंड द एम्ब्रियो कंटेन्स 1 or 2 cotyledons which store food for the future which is used by the plant. So this is the process of फॉर्मेशन ऑफ सीड। अब हमारा सीड की फॉर्मेशन हो चुकी है, अब हमारी किसकी फॉर्मेशन होगी? फ्रूट की फॉर्मेशन। फ्रूट की फॉर्मेशन किसकी मदद से होगी? ओवरी की मदद से। अभी हमने पढ़ा, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, हम फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट प्रोसेस में क्या होता है? जो हमारा ओवरी होता है, बाकी सारा तो फॉल ऑफ कर जाता है, हमारा क्या बचता है? सिर्फ ओवरी। ओवरी के अंदर अव्यूल होता है, अव्यूल के अंदर जायगोट होता है जो आगे फर्दर डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। ये प्रोसेस होता है हमारा सीड का फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस। अब हमारा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट प्रोसेस में क्या होता है? जो हमारा ओवरी होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और ड्राई कर जाता है, उसकी वजह से वो किसकी फॉर्मेशन ले लेता है? फ्रूट की फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डैट ये आपका आ सकता है एग्जाम्स में कि डैट फ्रूट की फॉर्मेशन किसकी हेल्प से होती है? सो योर आंसर इज ओवरी। ओवरी की हेल्प से हमारा फ्रूट की फॉर्मेशन होती है एंड सीड की फॉर्मेशन किससे होती है? योर आंसर इज अव्यूल। अव्यूल की हेल्प से सीड की फॉर्मेशन होती है। मीन्स हमारा फ्रूट की हेल्प से हमारी होती है ओवरी की ओवरी की हेल्प से हमारा फ्रूट बनता है एंड सीड हमारा बनता है अव्यूल की हेल्प से। फ्रूट बनता है हमारा ओवरी की हेल्प से एंड सीड बनता है हमारा अव्यूल की हेल्प से। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट प्रोसेस में जो हमारा ओवरी था वो बहुत हार्ड हो गया था, और क्या हो गया था? ड्राइज अप हो गया था। इट हार्डन्स एंड ड्राइज अप। जो हमारा ओवरी है वो फ्रूट की फॉर्मेशन लेता है। जब वो हार्ड हो जाता है और ड्राइज अप हो जाता है, उसकी सीड जो है, द सीड हार्डन्स एंड ड्राइज अप, द ओवरी वॉल्स में हार्डन एंड बिकम्स अ पॉड एज इट इज द टोमेटो फ्रूट प्रोसेस। दिस प्रोसेस नोन एज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। अब हमारा फ्रूट की फॉर्मेशन भी हो चुकी है, अब हमारा उसका डिस्पर्स्ड होना ज़रूरी होता है। किसका डिस्पर्स होना ज़रूरी होता है? सीड का। अब फ्रूट के अंदर जो सीड होता है, वो उसका डिस्पर्सल होना इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? कि सपोज फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेलिंग यू वन एग्जाम्पल दैट दिस इज़ a tree and some mangoes are laying in the tree. जब मैंगोज कुछ 4-5 मैंगोज जब ड्राइज अप होके नीचे गिर जाते हैं,
एक ही जगह जब सारे मैंगोस गिर जाते हैं, जब एक ही जगह सारे मैंगोस गिर जाते हैं तो उनके उनके आपस में कंपटीशन चालू हो जाता है कि अब किस मैंगो को ज़्यादा अच्छा टेम्परेचर मिलेगा, ज़्यादा अच्छा फूड मिलेगा, किस मैंगो को सबसे अच्छा फेवरेबल टेम्परेचर एंड फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी। सो यही कंपटीशन रह जाता है कि कौन सबसे अच्छे से ग्रो करता है, क्योंकि अब एक ही जगह पे सारे के सारे मैंगोस या 4-5 मैंगोस गिर गए हैं तो उनमें कंपटीशन रह जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब सीड की डिस्पर्सल होना शुरू हो जाता है कि बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, डिस्पर्सल ऑफ सीड. So friends, there are some agents of dispersal of seed like wind, water, animal, and there are some process of dispersal of seed that wind, animal, human beings, and water, and many more things, many more process of dispersal of seed. Then we discuss about germination of seed. So friends, we covered our this chapter till here, formation of seed. In next video we start our new topic, which is seed disperser. We discuss about the seed disperser, that how the disperser of seed occur from every किस किस से होती है, how many agents of disperser of seed, and etc etc. So friends, this is all for today. If you like my video, so please give it a big thumbs up, and if you are new on my channel, so please subscribe my channel. See you in the next video. Thanks for watching. Bye bye friends.